بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد. ناظرین، کرونا لاک ڈاؤن کے بعد دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کاروبار زندگی کھلنے کا ایک سلسلہ شروع ہے، لیکن اب بھی بہت سارے شعبے ایسے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو فاقہ کشی کی طرف جا رہے ہیں، جن کے شعبے کو کھولنے کے لیے اب تک کوئی ایس او پی تیار نہیں ہو سکی. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ملک بھر کے پریس کلبز کے باہر لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، اپنے مطالبات کے حق میں آواز بھی اٹھاتے ہیں، جن میں زیادہ لوگ اب وہ شامل ہو گئے ہیں کہ جو اپنے کاروبار کو کھولنے کے لیے حکومت سے توجہ کے منتظر ہیں، ایس او پیز کے منتظر ہیں کہ ان کے کاروبار کو بھی کھولا جائے، ان کے شعبے کی طرف بھی نظر کرم کی جائے، ان کو بھی زندہ رہنے کا حق دیا جائے، ان کی زندگی کے اندر بھی آکسیجن کے حق کو نہ چھینا جائے. ایسے ہی ایک شعبے کے اندر ہم موجود ہیں، اور جب اس شعبے کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمیں تاثر ایک یہ ملتا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود ایک اسپورٹس مین ہیں، تو اسپورٹس کی طرف ان کی نظر کرم جلدی ہونی چاہیے. لوگ یہ توقع کرتے ہیں، اسپورٹس سے وابستہ لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان ان کے مسئلے کو کسی اور کے مقابلے میں جلدی سنیں، کیونکہ خود انہوں نے ساری زندگی فٹنس کے اوپر کام کیا، خود انہوں نے ساری زندگی ٹریننگ کے اوپر کام کیا، پھر وہ چاہے کرکٹرز کی ٹریننگ ہو یا پھر فزیکل فٹنس ہو. آج ایک ایسے ہی شعبے کی آواز بننے ٹیم نئی بات جا رہی ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے فاقہ کشی کا شکار ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ یا تو روزگار دو یا پھر ہماری جان لے لو. آج ان سے بات کرتے ہیں. ہم ایک جم کے اندر موجود ہیں، کراچی کا علاقہ ڈیفینس ہے، یہاں کا ایک بڑا جم ہے، اس میں موجود ہے. لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت اس جم کو فل ہونا چاہیے تھا، ان مشینوں کو بھرا ہونا چاہیے تھا، یہاں پر چند ٹرینرز موجود ہیں کہ جو ان کے اونر نے شاید اپنی جیب سے پیسے بھر کر اب تک رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اس طرح کے دیگر جم، اس طرح کے دیگر جو فٹنس کلبز ہیں وہ خالی نظر آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی جم کے اونر ہیں سہیل انور صاحب، ایسوسیشن بھی ہے، اس کے بھی عہدیدار ہیں. ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے. سہیل صاحب، بہت شکریہ آپ نے یہاں انوائٹ کیا. ویسے تو ہم نے جب دیکھا پریس کلب کے باہر جو ٹرینر تھے، ویسے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید وہ اپنے جسم سے اور اپنی طاقت سے ساری دنیا کو تسخیر کر لیں گے، لیکن وہ بڑے مجبور نظر آئے. اور یہاں پر میں نے ایک شرٹ بھی دیکھی، ایک صاحب نے پہنی ہوئی تھی کہ اجازت دو یا مار دو. تو جب اس حد تک معاملہ آ جائے کہ اجازت دو یا مار دو، اور ہمارے جو نمائندہ خصوصی زاہد غفار انہوں نے بتایا کہ اس حد تک صورتحال آ گئی ہے کہ لوگ پنچر کی دکانوں پہ کام کرنے کے لیے مجبور ہیں، لوگ ریڑھی لگانے کے لیے مجبور ہیں. کیا صورتحال ہے؟ کتنی بڑی آپ کی صنعت ہے کہ جو زوال کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کے چینل کے تھرو جو کہ آپ اس مسئلے کے لیے ایک باقاعدہ پروگرام کر رہے ہیں. دیکھیں، بات صرف اتنی ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہی. اب مجبوراً ہمیں اپنی ایگزسٹنس دکھانے کے لیے ہم پریس کلب بھی جا رہے گئے، ہم نے احتجاج بھی کیا، ہم نے لیٹرز بھی دیے جا کے سندھ گورنمنٹ پہ، جو ایک پڑھا لکھا طریقہ ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس پاکستان میں پڑھے لکھے طریقے کو نہیں سمجھا جاتا. اس کی جگہ جب تک جلاؤ، گھیراؤ، پتھراؤ یا کرے، جو کہ ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں میجورٹی پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب رہی بات اس صنعت کی سب سے بڑی اہمیت میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا میڈیکل سسٹم پاکستان کے اندر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایک سپورٹنگ چاہیے. تو جمز جتنے ہی یہ سپورٹنگ ہے، آپ اٹھائیں اس وقت WHO کی رپورٹ، ملینز آف پیپل جو ہیں وہ بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، انزائٹی، جوائنٹ پین، مختلف بیماریوں سے مر رہے ہیں، جو کہ ریزن ہے موٹاپا، یعنی اس کی وجہ سے موٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اس سے ملینز آف پیپلز کی پورے دنیا میں ڈیتھ ہوتی ہے. پاکستان میں بھی یہ ہم کوئی کم ڈیتھ نہیں ہے. آپ کورونا سے تو شاید بچ گئے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہماری اتنی ڈیتھ نہیں ہے. تو کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ادھر سے کچھ بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ آپ اور مزید لوگوں کو موت کے منہ میں لے گئے؟ یہ تو ایک اس کا میڈیکل اسپیکٹ بتا رہا ہوں. اب رہی بات کہ معاشی طور پہ، اب اس میں دیکھیں کوئی خالی ٹرینرز نہیں ہے، باڈی بلڈرز نہیں ہے. خدا را اس مسئلے کو نکالیں کہ صرف باڈی بلڈرز کا کام ہے یا باڈی بلڈرز جاتے ہیں. نہیں بھائی، آج عمران خان صاحب کا جیسے آپ نے بتایا، وہ خود ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اب تک کرتے ہیں. ماشاءاللہ اس ایج میں وہ کیوں ہیں فٹ؟ انہیں کیوں نہیں ہے کوئی بیماری؟ ان کے ساتھ کیا کیا انسیڈنٹ نہیں ہوئے، لیکن وہ پھر کھڑے ہو گئے. وجہ وہ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ پوری دنیا کو پتہ ہے بات. اسی طریقے سے اب یہاں پر ہم نے 1995 میں نے پہلا جم کھولا تھا. آج میری فرینچائز ہیں پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں، اور اس میں صرف ہم نے گائیڈ یہ کیا ہے کہ ایک عام آدمی، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، ہر ایک ایکسرسائز کرنے آتا ہے جم کے اندر. معاشی طور پہ کیا ہے کہ وہاں پر آپ ایک کلینر بھی ہیں جموں میں، یہاں پر ریسپشنسٹ بھی ہیں، مینیجر بھی ہیں، ٹرینرز ہیں. اچھا، ایک نارمل جم کا، ایک میڈیم لیول کے جم کا خرچہ کیا ہوتا ہے؟ پریمیسز ہوتی ہے، مشین ہوتی ہے، ٹرینرز ہوتے ہیں، کیا خرچہ ہے؟ یہ واحد گیم ہے جو کہ ایک
بالکل لوئر مڈل کلاس سے مڈل کلاس، مڈل ہائر کلاس اور ہائر کلاس، ہر جگہ ہر طریقے کے جم موجود ہیں. ظاہر ہے لوئر کلاس میں اگر ہم جائیں تو ایک چھوٹے چھوٹے جم لوگوں نے گھروں میں بنائے ہوئے، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، جتنے کراچی کے چھوٹے علاقے ہیں چھوٹے جم ہے. اب وہاں کا رینٹ گھر والوں کو مل رہا ہے جو اونر ہے اس جگہ کا، پھر وہاں سے جم اونر کو مل رہا ہے، ٹرینر کو مل رہا ہے. تو کتنے لوگ اس سے ان کا فائنینشلی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. ایک جم اگر اس وقت کھولا جاتا ہے چھوٹا سا بھی جم تو وہ کم سے کم اس وقت آج کے دور میں 20 سے 25 لاکھ کا خرچہ ایک چھوٹے سے جم کا. منتھلی خرچہ ہے، بنانے کا منتھلی خرچہ اگر رینٹ پر ہے تو وہ ایوریج کم سے کم 2 سے 3 لاکھ روپے آتا ہے. ٹرینرز اور جو باقی وہاں پہ عملہ کام کرتا ہے، چھوٹے سے جم کا 3 لاکھ تو ہے ہی ہے. اگر آپ بڑے جم پہ چلے جائیں جیسے ہمارے یہ کہہ لیں کہ اس وقت اگر 5 مہینوں پہ محیط ہو گیا ہمارا لاک ڈاؤن تو 20-25 لاکھ روپے اس نے اپنی جیب سے بھر دیے یا مشینیں بھر کے پیسے دیے ہیں. زیادہ تر بیچ رہے ہیں. خودکشی کی کوشش کی ہے اس کے اندر لوگوں نے. لوگ پنچر لگانے کا آپ کو پتا ہے، لوگ چائے کی دکان میں رکشہ چلا رہے ہیں. میرے اپنے جم کے اب دیکھیں میرے پاس اگر جو سٹاف تھا میں نے کم کرتے کرتے 2 مہینے دیے سیلری، اس کے بعد میں نسپاری کرا. اب ہمارے پاس تھوڑا سا سٹاف رہ گیا جو ہمارا بہت پرانا سٹاف ہے جس میں خاص طور پر صفائی والے اور اس ٹائپ کے لوور طبقے، لیکن وہ سارے ہم نے سٹاف کو ہم نے بول دیا، ایکسکیوز کر لیا بیٹا جب کھلیں گے. تو اب وہ جا کے کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اب یہ حال دیکھیں کس طرف جا رہا ہے. کیا کوئی خودکشی کرے گا تب یہ گورنمنٹ؟ اچھا ایک چیز اس میں اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب میں اجازت دے دی گئی ہے، سندھ میں اب تک کوئی ایس او پیز نہیں آیا. پنجاب میں کے پی کے میں ہر جگہ جم کھول لیں، پورے پاکستان میں کھول لیں. اور یہ دنیا کی رپورٹ آ چکی ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے تھے یا کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے تھے ان کا جب اینٹی باڈیز کیا گیا تو یہ آیا کہ ان کو کورونا ہوا، ختم بھی ہو گیا، پتہ بھی نہیں لگا. ان کی امیونٹی اتنی اچھی ہے. تو یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے یہاں یہ وزیر اعظم کو کیوں نہیں سمجھا، ہمارے سندھ گورنمنٹ کے مراد علی شاہ صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی. بلاول بھٹو صاحب یہ ایک ینگ ہے، ان کو بھی یہ چیز سمجھنے کہ ینگ جنریشن سے لے کے اب یہ بچے بوڑھے سب کا ایک مسئلہ ہے. اچھا سہیل صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. کچھ ٹرینرز جو ناظرین یہاں پر فارغ ہی اس لیے ہم کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر کام نہیں ہو رہا. جس وقت میں نے پہلے بھی کہا کہ اس جم کو بھرا ہونا چاہیے تھا، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے. یہ ٹرینرز بھی ہم نے بلائے ہیں، ورنہ تو سہیل صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ گھر پہ آرام تشریف رکھیں، ہم آپ کو تنخواہیں پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ جب کام نہیں ہے تو پھر یہاں پر آ کر رش کرنا، بجلی جلانا کیا معاملہ ہے. جناب اپنا تعارف کرائیے گا، اس مشین کے بارے میں بتائیے گا اور آپ کرتے کیا ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں رمیز ابراہیم خان. میرے پاس ڈفرینٹ ٹائٹلز ہیں، کراچی ڈسٹرکٹ، سندھ، نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ 2-3 دفعہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا ہوں. تھائی لینڈ کے اندر اور کیا کہتے ہیں ورلڈ میں 4th پوزیشن لی ہے میں نے. اور میں خود بھی جم آنر ہوں، میرے بھی اپنا جم ہے، ٹرینر بھی رہا ہوں، وہاں پہ ٹریننگ بھی کراتا ہوں اپنی، مطلب جم بھی دیکھتا ہوں. اور یہ جو مشینیں ڈیکلائن پریس ہے، ڈیکلائن بینچ پریس، ڈیکلائن فلینک کے لیے استعمال ہوتی ہے. اچھا ابھی جس طرح سے سہیل صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جمز بند ہیں، خاص طور پر سندھ کی بات ہو رہی تھی، تو آپ کا اپنا جم اور آپ کی اپنی ٹریننگ وہ کس حد تک متاثر ہو رہی ہے؟ بالکل متاثر ہو رہی ہے. اس میں جیسے سہیل بھائی نے بتایا کہ کیونکہ اس کے ایکسپینس جو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ بجلی کا بل ہو گیا، اس کا رینٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد امپلائیز، اب اگر ان کو نکال دیں گے تو بعد میں جب ہمیں ان کی نیڈ ہوگی تو وہ بولیں گے آپ نے اس وقت ہمیں نکال دیا جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی. تو ہماری مجبوری ہے ان کو پے کرنا، بالکل، کیونکہ ہم ان کا سہارا ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ ان کی کو اپنی دینا ہے. ٹریننگ کس حد تک متاثر ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ جم آپ شاید گھر پر تو کر لیتے ہو، لیکن ایک ماحول ہوتا ہے، بندہ اس ماحول کے لیے ہی کسی جم میں جاتا ہے. بالکل ایسی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر زیادہ جو ہے وزن اٹھانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، دوسروں کو دیکھ کے لفٹ کرنے کا اچھا مزہ آتا ہے. ہماری اسٹرینتھ میں فرق پڑ رہا ہے، ہماری ٹریننگ میں فرق پڑ رہا ہے. ہم ڈائٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ظاہر ہے میں اگر 2000 روپے روز اپنی باڈی پہ خرچ کرتا ہوں تو اب میں نہیں کر سکتا ان حالات میں. لازمی سی بات ہے کہ اتنی ارننگ نہیں ہے، تو اس سے میرے مسلز، میری باڈی، میری فٹنس خراب ہوتی جا رہی ہے. اب پوری دنیا میں تو جم آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایونٹ آ جائے گا. اب جیسی کوئی ایونٹ آئے گا تو ہماری وہ پرفارمنس نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، جو ہمیں اتنا ٹائم ملا اور جو ہم کرنا چاہتے تھے اور جو ہم کر سکتے تھے. لیکن اس دوران جو اگر اب بھی مزید جم بند کر دیے گئے اور آگے ہمیں پریکٹس کا موقع نہیں ملا، فٹنس کا موقع نہیں ملا، تو مزید فٹنس خراب ہوگی. اس میں پھر انجریز ہوتی ہیں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ باڈی ٹائپس ہوتی ہیں، تو ان کو ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں جب وہ ٹریننگ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آگے کی طرف چلتے ہیں. ایک خاتون یہاں پر موجود ہیں اور ان کا تعلق جو یوکرین سے ہے. یہ یہاں پر ٹرینر ہیں پاکستان کے ڈیفنس کے، کراچی کے اس جم کے اندر. What do you want to talk?
I want to talk that gym, this is not dangerous zone for infection, no more than any other shops or offices, because we see in the street no any social distance, no any softs. But in gym we have softs, we have distance, we have limited visitors. So I think this is not a dangerous zone. This is became to place where people more increase his health, increase his immunity, and doing more better for prevention infection. नतालिया का यही कहना था कि जिम तो वो जगह है कि जहाँ पर बड़ा ही लिमिटेड किस्म का लोगों का आना जाना होता है, जहाँ पर एसओपीज किसी भी और जगह के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो इनका यही मुतालबा था कि ताकि जिम को खोला जाए। ये 2-2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान में खिदमत अंजाम दे रही हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करवा रही हैं। आपका क्या नाम है और आप यहाँ पर क्या करती हैं? अस्सलाम वालेकुम ऑल, मैं हूँ आपकी ट्रेनर रजा इब्राहिम और मेरा ताल्लुक रिक फिटनेस से बेसिकली गुलशन गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में ट्रेनिंग्स देती हूँ। बेसिकली मैं जुम्बा ट्रेनर हूँ और 40 डेज चैलेंज करवाती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशंस करवाती हूँ। तो जुम्बा ट्रेनिंग क्या है, थोड़ा सा ये भी बता। जुम्बा ट्रेनिंग बेसिकली जो है वो डांसिंग ट्रेनिंग है और इट्स लाइक कि आपने इंजॉय करते हुए और डिप्रेशन को दूर करते हुए, और जैसे आप जानते हैं कि ख़वातीन में किस कदर बीमारियां फैल गई हैं आजकल। मैं आपको बताऊं कि हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लड़कियों में, और जो जिन ख़वातीन को मैं डील करती हूँ 200+ ट्रांसफॉर्मेशंस में दे चुकी हूँ। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें मैंने यही देखा है कि लड़कियाँ डिप्रेशन, कंसीविंग इशूज़, PCOS और वेट गेनिंग, ऑफ कोर्स उसकी वजह से वेट गेन होता है लड़कियों का, और फिर उनका हम वेट लॉस करवाते हैं। तो जब लड़कियां मेरे पास आती हैं तो लड़कियों का थोड़ा सा, मैं चूँकि मैं लड़कियों की ट्रेनर हूँ तो मैं इसी हवाले से आपको बताना चाहूँगी कि लड़कियों का ये होता है कि लड़कियां कम टाइम में जल्दी वेट लॉस करना चाहती हैं। वो तो हर फर्ज जाता है, लेकिन लड़कियां ये चाहती हैं कि अगर हम वो आके हमसे ये कहती हैं कि भाई 1-1.5 महीने में मेरा वेट लॉस करवा दे रजा इब्राहिम, आप बस 10-15 किलो गिरवा दें, मेरी शादी है। तो अब मेरे पास इस तरह के जो है ना फिर वो जो है वो टारगेट्स आते हैं। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से अब तो 4-5 महीने से, मतलब मार्च में शुरू हुआ था और अब हम देख रहे हैं कि जुलाई भी तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है। तो इस सारे अरसे के दौरान आप क्या समझती हैं कि जो आपके स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स में इसलिए कह रहा हूँ कि आप ट्रेनिंग है बुनियादी तौर पर, सिर्फ ये फिजिकल कसरत करना इसका काम नहीं है, तो जो आपके सारे स्टूडेंट्स हैं वो किस हद तक इससे मुतासिर हुए हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मशीनें, ये ट्रेनिंग और ये आपके लेक्चर्स और ये आपका मोटिवेशन ये लोगों को घर पे अवेलेबल नहीं है, तो किस हद तक लोगों का नुकसान हुआ है? देखिए, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं लाइव सेशंस देने की बहुत कोशिश करती हूँ, इसके अलावा इंटरव्यूज़ वगैरह दे रही हूँ लाइव। आप देख रहे हैं फेसबुक पे अब ये काफ़ी कॉमन हो चुका है, लेकिन ये इनफ नहीं है। सेकेंडली, हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का निकाला तो लड़कियाँ मुझसे ये कह रही हैं कि मैम अगर हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग ही दे रही है तो हम इतना पे क्यों करें? यूट्यूब के ऊपर वीडियोस क्यों ना देख लें? तो फिर हम तो बोर होते हैं। आपने जिम्स खोले ही इसलिए कि हमें मोटिवेशन मिले। बेसिकली हमारा काम लोगों को मोटिवेट करना है। हमें फिटनेस ट्रेनर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, मेरा काम बेसिकली ये है कि लोगों में फिटनेस अवेयरनेस क्रिएट करना और लोगों को रागिब करना कि आपने जिम आना है, आप घर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। कितनी ख़वातीन आपके पास यहाँ पर इनरोल्ड हैं? अगर एक आम हालात में देखें, यानी कि लॉकडाउन से पहले अगर देखा जाए तो कितनी ख़वातीन यहाँ पर इनरोल्ड हैं ट्रेनिंग के लिए जो आती हैं? हर ब्रांचेस का डिफरेंट है। अब मेरी जो नॉर्थ कराची वाली ब्रांच है उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। गुलिस्तान जौहर में जो है वो 100+ स्टूडेंट्स हैं। गुलशन इकबाल में भी 100+ स्टूडेंट्स हैं। एरिया टू एरिया वेरी करता है ये सब। तो वो सब मुतासर हो रही हैं। अब आप देखें, अगर किसी को PCOS है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो वो लड़की अगर घर पर रह रही है और अगर वो 4 महीने घर पर रहेगी तो उसका जो नॉर्मल लोगों का जो वेट गेन हो रहा है 2 या 4 किलो, तो उस लड़की का 10 किलो तक वेट गेन होगा। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज भी है और एक नुकसान। हेल्थ इश्यूज की वजह से आप समझते हैं जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई है तो उसका वेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उसको जो है वो रिस्क भी है, थ्रेट भी है उसकी लाइफ को? बिल्कुल। आपकी जब पीरियोडिक साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी, जो हमारी मंथली साइकिल होती है, तो फिर आप जो है वो लड़कियों के लिए, लड़कियां तो चली उस पर रही हैं। चलिए नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो यहाँ के जो ओनर हैं उन्हीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे, क्योंकि एसोसिएशन के भी ओहदेदार हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर हुकूमत के लिए उन्होंने क्या तजावीज़ प्रेजेंट की थी और हुकूमत की तरफ से अब तक उनको क्या जवाब मिला है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद मौजूद हैं कराची के एक ऐसे जिम में कि जहां की रौनकें मांद पड़ चुकी हैं कोरोना लॉकडाउन के बाद। एसओपीज़ ही तैयार होकर नहीं दे रही। अगर एसओपीज़ तैयार हो चुकी हैं तो एसओपीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नोटिफिकेशन है, इजाज़तनामा है, वो अब तक जारी नहीं हुआ, जिसकी बुनियाद पर यहाँ ना सिर्फ सैकड़ों लोग जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, बल्कि साथ साथ इस इंडस्ट्री से जो कनेक्टेड लोग हैं, जो और बहुत सारे गेम्स हैं, वो सारे मिलकर भी जो है वो प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के लिए मौजूद थे, जिसने हमें मजबूर किया कि हम आकर इनकी आवाज़ भी उठाएं, इनकी आवाज़ भी हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक चीज़ मुझे बताइएगा, एसओपीज़ क्या तैयार की हैं आपने? एक जिम के अंदर एक छोटा सा एक कवर्ड एरिया है, वहाँ पर अगर कोई कोरोना का खुदा ना खासा पेशेंट आ जाता है तो उसकी सारी वायरस से बचाने के लिए, उसके सारे पेंडेमिक से बचाने के लिए क्या एसओपी हो सकती है? कुछ तैयार किया है आप लोगों ने, कोई डॉक्यूमेंट? जी बिल्कुल, जैसे कि अगर कोई जो जैसी हमारा कोई मेंबर आता है उसको सबसे पहले तो हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसको स्प्रे से डिसइंफेक्ट करते हैं, फिर वो अपना हाथ सैनिटाइज करता है, सैनिटाइजर वहाँ लगे हुए हैं, उसके साथ फिर उसका हम ब्लड प्रेशर, ऑक्सीमीटर से उसका पल्स सब कुछ चेक करते हैं। उससे हेल्थ कंडीशन का सामने ही अच्छा, आप मजे की बात सुने, ये चीज एक आदमी अपने घर में भी रोजाना नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल जाएंगे तो 500,000 रुपए देना पड़ेंगे, हम वो काम फ्री में कर रहे हैं, सिर्फ जो फीस ले रहे हैं उसमें डेली, यानी जो डेली आ रहा है। अगर मिसाल इसमें ले लूं, मेरी पल्स रोजाना एक थोड़ी बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, एक नॉर्मल आती है तो अच्छी बात है, लेकिन हल्की फुल्की ज्यादा आती है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। अब किसी दिन मैं आता हूं, मैं दिखता हूं मेरी पल्स अचानक चेंज हो गई है, मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, मेरी ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन कम आ रही है, तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा फौरन। बिल्कुल हम एक्सरसाइज नहीं करने देते, उन्हें बोलते जी आप जाएं और जाके अपना चेकअप कराएं पहले। तो ये सिंपल है, ये घर में भी पॉसिबल नहीं है। कोई घर वाला घर में रोजाना टेम्परेचर चेक नहीं करता, ये मैं गारंटी से बोलता हूं। ना वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करता है, ना वो ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करता है। अब वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, अगर रोजाना चेकअप हो रहा है और बगैर किसी कॉस्ट के उसके। अच्छा, एक चीज और थी, हुकूमत ने खास तौर पे जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बने तो एक टास्क फोर्स बनी, जिन्होंने कहा कि मुख्तलिफ एसोसिएशन से बात करेंगे, पाकिस्तान में खेलों की बहाली जो है उसके लिए इकदाम करेंगे। लेकिन महसूस ये होता है कि टास्क फोर्स बनने का नतीजा निकला कि जो कुछ हो रहा था वो भी होना बंद हो गया। आपका क्या एहसास है? क्योंकि आप भी एक बड़ी एसोसिएशन है जिससे हजारों लोग रोजगार की सूरत में वाबस्ता हैं और स्पोर्ट्स की सूरत में वाबस्ता हैं। तो मैं अफसोस के साथ कहूंगा, बहुत अफसोस के साथ, इमरान खान साहब जब आए थे वज़ीर-ए-आज़म, मुझे एक खुशी हुई थी कि अब क्रिकेट के साथ दूसरे खेलों को भी मिलेगा, क्योंकि वो पहली बात है वो भी जिमिंग करते हैं। हमें बहुत खुशी थी बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ एक फिटनेस ट्रेनर और ये सब कुछ। लेकिन अफसोस इतना होता है शायद उनसे पहले वाली गवर्नमेंट बेहतर थी। आपको मजे की बात बताऊं, हम इंपोर्ट अगर ये मशीनें करते हैं, क्योंकि यहाँ उस लेवल की मशीनें बनाता नहीं है, 200% ऑलमोस्ट ड्यूटी पड़ेगी। अगर हम $50,000 आ जाता है, लग्जरी क्यों है? लग्जरी पूरी दुनिया में, मलेशिया में गेट स्मार्ट की फ्रेंचाइज है, वहां जीरो है। वो कहते हैं हेल्थ के ऊपर हम जीरो करेंगे। आपने मोबाइल पे ड्यूटियां अब की जाके, जिंदगी भर तो उसमें ड्यूटियां नहीं थी, और 10,000 चीजें यहाँ पर आप उन चीजों पर बढ़ाएं। आप सिगरेट पे ड्यूटियां बढ़ा दें इतनी, इंपोर्टेड के ऊपर, इसके ऊपर तो जीरो करें ताकि लोग मंगाएं। या फिर आप ऐसे इंडस्ट्रीज लगाने के मौके दें, या वो मशीनें नहीं है, जो मोल्डिंग मशीनें उनके पास हैं, जो एंगल, जो रिजल्ट उनके पास है। इमरान खान साहब को समझते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आपके उससे बोलूंगा कि इमरान खान साहब की सबसे बड़ा मुझे अफसोस इस बात का है कि उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो देने के बजाय इन फिटनेस इंडस्ट्रीज और खेल तबाह बर्बाद हो गए। रही बात आप स्पोर्ट्स की जो कमेटी और ये टास्क फोर्स बनी थी, मैं बोलता हूं इतना मजाक इससे पहले कभी नहीं हुआ जो अभी बना है। अच्छा, अब मसला है कि नीचे लेवल पे वही लोग बैठे हैं जो एक माफिया है, ऊपर के ऊपर बदल जाए। जैसे फहमीदा मिर्जा साहिबा को उन्होंने दिया है ये टास्क। फहमीदा मिर्जा साहिबा बहुत नाइस खातून है, मैंने बदीन में भी उनके साथ काम किया, मिस्टर पाकिस्तान कराया था, तमाम चैनल ने किया था, जहां एक आपका वो नहीं था, क्या नाम है, होटल नहीं था। लेकिन अब जब वहीं अब नीचे वाले जो रिपोर्टिंग करते हैं वो उस पे आती है। पैरेलल फेडरेशनें बना दी हैं, बॉडी बिल्डिंग में 8 बना दी, हर एक गेम में 5 से 6 फेडरेशनें बना दी। अब वो क्यों बना दी हैं? यानी कि आप समझते हैं कि रेगुलेशन भी कमजोर हुई है बहुत ज्यादा। अब उस पे क्या हुआ, 5-6 फेडरेशनें बनने से कि पैसे जो हैं वो उनको दिए जाते हैं जो माफिया नीचे बैठी है और वो हिस्सा देती है। कल मैं अगर हिस्सा देने को तैयार हूँ, मुझे बुला के ग्रांट दी जाएगी, मुझे हमें ग्रांट नहीं जाएगा। अब भी हमने इतने लेटर भेजे, हमने कॉल्स की, हमने टीवी प्रोग्राम्स किए। शेख फारूक इकबाल एक हमारे प्रेसिडेंट हैं, जिसको आपके चैनल ने भी एक्सपोज किया था कि वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर 4 साल में ले चुके हैं गवर्नमेंट से। 1 रुपया ट्रेनर को नहीं दिया। जितने ट्रेनर्स हैं मेडल्स ला रहे हैं, अपना टिकट, अपनी खर्चा, अपनी अकोमोडेशन, सब कुछ वो खुद अपनी जेब से करते हैं और मेडल इस मुल्क के लिए जीतते हैं और उनको वो पैसे नहीं मिले। लाहौर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर दीगर फेडरेशंस के लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, आपका भी फिटनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक है। एक सवाल आमतौर पर ये आता है, लोग ये समझते हैं कि ये कसरत करना या एक्सरसाइज करना ये शायद सिर्फ मर्दों का काम है और जिस तरह की शर्ट जो है वो
सर ने पहनी हुई है, तो ये इस तरह की आधी शर्टें पहन के मर्द घूमेंगे और बड़ा जो है ना मिस्टर पाकिस्तान बन जाएंगे। तो ख़वातीन का इसमें क्या रुझान है, ख़वातीन कितना मुतासिर हुई हैं इससे? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि औरतें मर्दों के शाना बिशाना खड़ी हैं हर फील्ड में, तो सिर्फ और सिर्फ फिटनेस ही में क्यों पीछे रहेंगी। ख़वातीन जो हैं वो फिटनेस करती हैं, और इनफैक्ट मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो है वो एज ए जज जा चुकी हूँ, एज ए जज हूँ मैं वहाँ की। वहाँ पर जितनी फिटनेस इंडिया से और तमाम दूसरे मुल्कों से, लेकिन हमारे पाकिस्तान हर चीज़ में बहुत पीछे है। रुझान क्या है यहाँ पर ख़वातीन का? ख़वातीन फिटनेस शायद करना चाहती हैं, बहुत मेजॉरिटी करना चाहती हैं, क्योंकि घर में रह रहकर ख़वातीन के पास और इसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है जो वो एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें, अपनी तमाम डिप्रेशन और तमाम एंजाइटीज़ को रिलीज़ करें। इसके अलावा उनके तमाम मेडिकल मतलब अपने खावन से लड़ने के बजाय यहाँ आकर फिटनेस कर ले, ताकि डंबल से आके लड़ लिया जाए। एग्जैक्टली, ताकि यहाँ पर सारी एनर्जी चले जाए। एक साहब यहाँ पे खड़े हैं, काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि उनके सीने पे दर्ज है इजाजत दो या मार दो। इस सूरत हाल तक आप क्यों पहुंच गए कि आप कहते हैं कि हमें जिम खोलने की याद दी जाए या मार दिया जाए? क्या इतनी खराब सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, एक मसला ये है कि मेरा ताल्लुक सक्खर शहर से, मैं 5 सालों से गेट स्मार्ट में काम कर रहा हूँ। 5 से 6 सालों में मैं यहाँ पे ट्रेनर हूँ। मेरे हालात घर के ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल ये जब जो शेड देख रहे हो ना, इजाज़त दो या मार दो। 5 से 6 महीने हो गए हम फार्क लोग बैठे हुए हैं घर पे। बच्चों की फीसें हैं, स्कूल की फीसें हैं और मकान का किराया, हर चीज़ है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि इजाज़त दो जिम खोलने की, जहाँ फिर मार दो। चलें, अल्लाह ताला खैर करे, आपको जो है वो इजाज़त ज़रूर मिल जाएगी। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए आवाज़ उठाएं। जनाब, आपका किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, क्या काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जमील चांडियो है और मैं फॉर्मर पाकिस्तान का 6 दफ़ा का नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। और इंटरनेशनल फ़ाइट्स में मैंने पाकिस्तान को 7 कंट्री में रिप्रेजेंट किया है, और मेरी बेस्ट जो आई थी उसमें कनाडा में 2nd, ईरान में 3rd, और 97 और 94, फिर 95 जापान में मेरी बेस्ट 82 कैटेगरी आई। तो पाकिस्तान में बेसिकली जो मार्शल आर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स फॉर फिटनेस एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स फॉर प्रोफेशनल फाइट्स, तो मेरा उस यानी कि सिस्टम से ताल्लुक़ है, और मैं उन सबको रिप्रेजेंट करता हुआ उनके खातिर फ़ाइट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा अपना जिम जो है, 2 मेरे जिम बंद हो गए हैं, और वो एक जमजमा पे है और एक गिजरी पे है। और वो यही पैंडमिक की सूरत हाल पे हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। हमने कहा कि ठीक है, हमारे साथ, हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। कोई तकरीबन 250 स्टूडेंट्स हमारे एक्टिव थे, जिसमें मेल, फीमेल, किड्स और बच्चे, पर्सनल ट्रेनिंग, तमाम अफराद आते थे। और मैं गुज़श्ता 15 सालों से ये हमारी एक्टिविटी चल रही है। अब हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं सोच रही कि जिन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं, और मैं उसी कॉज के लिए यहाँ पर आ गया हूँ कि पाबंदी आपने लगाई, आपको चाहिए था कि आप फिर जिनको आपने पाबंदी लगाई है आप उनसे मालूम करें कि जी उनका हाल क्या है। क्या हम स्टेट बैंक को बिल्कुल छोड़ दें इसी तरह सिर्फ स्टेटमेंट पे, जो कि मीडिया के ज़रिए कि गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने तकरीर कर दी कि जिनको बैंक से लोन चाहिए अपनी स्टाफ की सैलरी के लिए तो वो आ जाएँ, लेकिन वो जब प्रोसेस करने हम गए तो वहाँ तो हमें बिल्कुल ही अंधेरा हमें रखा गया और कहा गया कि जी आपको पहले घर के कागजात दिखाने पड़ेंगे, जितनी मालियत की जो सैलरी है उतनी मालियत का आप सोना हमें जमा करा दें। ये हमें बैंक कह रहा है, ज़मानत जमा है। तो भाई अगर हमारे पास पैसा होता हम आपके पास क्यों आते अपने स्टाफ की सैलरी के लिए? अच्छा, ये फिटनेस के ऊपर जो एक फिटनेस जिम्स के ऊपर पाबंदी है, आपके इंडोर स्पोर्ट्स के ऊपर जो पाबंदी है, उससे कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं और पाकिस्तान की फ्यूचर में रिप्रेजेंटेशन किस हद तक इससे मुतासिर होगी? देखें, रिप्रेजेंटेटिव मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये थोड़ा सा एक अलग है। जो इस वक्त करंटली जो हुए हैं 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, 4था महीना शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से अंदाज़न आप सिर्फ सिंध की लेवल की बात करें तो स्ट्रेट अवे 60-70,000 लोग इससे इम्पैक्ट डायरेक्ट हुए हैं। अब हमारी छोटी सी जिम के अंदर लगा लें कि तकरीबन 35 का स्टाफ है, ठीक है, मुझ समेत। तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमिकल जो मुझे पड़ा है। तो इस तरह वहाँ पर रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको रेंट नहीं मिलेगा लैंडलॉर्ड को, तो वो हमें यहाँ से कह देगा आप चले जाएं। अब हम इस 35-40 लोगों को जो पिछले 15 साल से हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो कहाँ जाएंगे? ठीक है जी, वो हर जिम पे हुए। मार्शल आर्ट्स की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ से बात कर रहा हूँ, हर तरह से बुरा हाल है। अब आ जाएं आपके इंटरनेशनल पे, तो सर आपकी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप खुलकर इसको शाया करें ना, जिस तरह सुहेल भाई ने कहा, आप लोगों को चाहिए आप स्ट्रेट अवे बात करें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आखिरी जो है मेडल हमने 1985 में सियोल ओलंपिक, 88 में सियोल ओलंपिक में लिया बॉक्सिंग का, और दैट वाज अ ब्रॉन्ज मेडल। बिल्कुल ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल 88 में सियोल ओलंपिक में आपने लिया है, और उसके बाद से आप
कौन खड़ा हुआ है ओलंपिक को देख रहा है, कौन स्पोर्ट्स बोर्ड को देख रहा है, उसके ऊपर आप लोगों ने किन लोगों को बिठाया हुआ है कि जब पाकिस्तान की तो पेंडेमिक की वजह से 3 महीने से आप सवाल कर रहे हैं, ये तो पिछले 30 सालों से 35 सालों से कोई एक मेडल किसी गेम में प्रॉपर नहीं आया। यानी कि हमारी जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी ही पेंडेमिक का शिकार है। जनाब वो पिछले 35 सालों से क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं। चले मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस क्लब की बात हो और वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि थोड़े से बुजुर्ग भी हैं। जनाब आप क्या करते हैं? I'm doing taekwondo. मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान पैरा taekwondo फेडरेशन का, जो UTF PTF के साथ मुंसलिक है। और मैं तो आपको एक सरप्राइज दूंगा, सिंध के वज़ीर आला साहब, मैं असल में माजूर बच्चों का इंस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा। ख़ास करके हमारे पास कम से कम 20,000 बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान में पैर रखे। क्योंकि मैं जिम के हवाले से आपसे बात करूँ, जिम हो या taekwondo या मार्शल आर्ट हो, ये सब एक फैमिली है। नहीं, लेकिन ताइक्वांडो के अंदर तो सोशल डिस्टेंस भी होता है, उसमें तो आपने किसी मशीन का यूज भी नहीं करना, आपने फिजिकल ट्रेनिंग करनी है और डिस्टेंस आप किसी ग्राउंड में खड़ा करके डिस्टेंस, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें मुझे नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम है। आप हैरान होंगे अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ, वज़ीर आला साहब का बच्चा भी हमारे मकामी स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग करता है, जहाँ मैं taekwondo कराता हूँ। उस स्कूल के 6 बच्चे भी मेरे साथ जापान गए थे, माजूर बच्चे। अच्छा। स्पेशल चिल्ड्रन, वो अभी घर पे बैठे हैं, उन्हें कोई प्रैक्टिस नहीं मिली। मुझे फ़ोन करते हैं, सर प्रैक्टिस कब शुरू होगी? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के वज़ीर आला साहब से, आपका बच्चा भी माजूर हो। इस तरह के हज़ारों माजूर बच्चे अपने घरों पे बैठे हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग के मुंतज़िर हैं। तो आपकी कोई नेगोशिएशन हुई, कोई बातचीत हुई? क्योंकि ये तो एक स्पेशल केस है, ये जो बाकी सारा केस हम स्टडी करते आ रहे हैं उससे मुख्तलिफ है कि आप तो माजूर बच्चों के लिए एक ऐसी ट्रेनिंग करवाते हैं कि जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी इशू नहीं है। तो हुकूमत का क्या जवाब है जब आपने रब्ता किया? जब हमने रब्ता हो गया तो हाँ खोल देंगे, ओपन करेंगे जब क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा। ये बातें हैं। सिंध के साथ, स्पोर्ट्स के साथ सतली माँ का सलूक हो रहा है। आई हैव बीन ऑल वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, आई हैव बीन ऑल वर्ल्ड। पूरी दुनिया देखी मैंने taekwondo की वजह से, और मैंने इसराइल ही नहीं गया, मैंने सब जगह देखा कि अब सब जगह क्वारंटाइन के बाद सब जगह स्पोर्ट्स और सोशल काम शुरू हो चुके हैं। मैं हमारे साथ सिंध में जाती है, और मैं तो हैरान हूँ। वज़ीर आला साहब का बेटा खुद जिस फेडरेशन से मैं ताल्लुक़ है माजूर बच्चों की, उनका बच्चा स्पेशल है, और मेरी दिली हमदर्दी है वज़ीर आला साहब के साथ भी, उस बच्चे के साथ भी, कि प्लीज़ उसको फिजिकल ट्रेनिंग कराएं और बच्चों को भी फिजिकल ट्रेनिंग कराएं। आपको अल्लाह इसकी जज़ा देगा। आपके सेंटर में कितने बच्चे हैं जो आपके साथ काम ट्रेनिंग करते हैं? सर माजूर बच्चे अबाउट 800 बच्चे हैं बस इस सिंध के अंदर खाली। अच्छा। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सारे मिनिस्टर जितने भी हैं, जो जैसे सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब हैं, वो भी मेरे पास एक्सरसाइज करते हैं, और उनसे पुरजोर अपील करता हूँ कि हमारे जिम की तरफ खुदारा इधर तवज्जो दिलाई जाए, ताकि हम लोग बड़े क्राइसिस के अंदर हैं। पिछले 2 महीने से तो सर्वाइव कर पाए हम, लेकिन अब हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, और हम ट्रेनरों के साथ एक फैमिली के साथ 8-8, 10-10 लोग, जिसमें हमारे बच्चे भी हैं, हमारी फैमिली के लोग भी हैं, उनको हम सपोर्ट्स करते हैं। और जब से ये जिम बंद हुआ है, हम उनको सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, और हमारी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है। और मैं जाम इकराम साहब से भी, जो हमारे मिनिस्टर, वो भी, उनको भी मैं एक्सरसाइज कराता हूँ। इमामुद्दीन शौकीन साहब है, करंटली सेनेटर हैं। अली शाह साहब हैं, जो नासिर शाह साहब के बेटे हैं, वो भी मेरे साथ एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं करंटली इन सब से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली हमारे इशूज़ की तरफ तवज्जो दिलाई जाए सिंध गवर्नमेंट की, और मुराद अली शाह साहब से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जिम फौरी तौर पर SOPs के साथ खोले जाएँ। एक और हमारे साथ साहब मौजूद हैं। जनाब आप क्या काम करते हैं? आप किस तरह से मुतासिर हुए कोरोना से? हमारे मुल्क के बच्चे सब मुतासिर हैं, और मैं अपना तारुफ करा दूँ, मैं QBBFF कायदे-ए-आज़म बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, और पहला पाकिस्तानी हूँ जो IPC अवार्ड मुझे मिला है। लेकिन इसमें मैं इमरान खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अच्छे तरीके से इनको देखें, नीचे अपनी कैबिनेट को देखें, क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्स मैन है। कोई काम हो नहीं रहा सीक्वेंस से, स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो हम फिटनेस पे काम करना चाहते हैं। हमारा दीन भी यही बताता है। जिस तरीके से मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में पहला प्रेसिडेंट देखा जो नबी पाक के हवाले से उन्होंने इतनी बार स्पीच करी कि वो मान गए, और हम तो मानते ही हैं, लेकिन दूसरे गैर मुस्लिम भी उस बात को माने और तस्लीम करा। तो मुझे उम्मीद है
کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے, ہمارے پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے صحت مند مسلمان تو ہم پیدا کریں. جب اگر ہم صحت کے لیے ہمیں جم ہی بند ہو جائیں گے تو صحت کیسے آئے گی, تو ہم بیماریوں سے کیسے بچیں گے, مزید بیماری ہم پر اٹیک کرے گی. تو ہماری صحت ہی ہے جو ہم لڑ سکتے ہیں. اب ہماری آرمی ہے, کیا وہ ورک آؤٹ نہیں کرتی, کیا وہ پریکٹس میں نہیں ہے؟ انہیں تو ہر وقت حالت جنگ میں ہے وہ, تو انہیں تو اپنا ورک آؤٹ کرنا ہے. تو جب وہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہمارے چلے ناظرین, یہاں پر اس پارٹ کو ختم کرتے ہیں. جم ٹریننگز اور یہ سارے جو انڈور سپورٹس ہیں اس پہ پابندی کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک مظاہرہ ہوا تھا کراچی پریس کلب کے بعد, جس نے ہمیں یہ موٹیویشن دی کہ ہم ان کی آواز بھی بنیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ان لوگوں کی آواز بنیں گے کہ جن کا تعلق براہ راست وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے ہے. بریک کے بعد بتائیں گے وہ کون لوگ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم موجود تھے ایک فٹنس کلب میں, موجود تو اب بھی وہیں ہیں, لیکن فٹنس سے متعلق بات کرتے کرتے بات آ گئی وزیر اعظم پاکستان کے اس شوق کی طرف کہ جس کی وجہ سے آج وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, یعنی کہ کرکٹ. اور کرکٹ کی وجہ سے ہی وزیر اعظم عمران خان کو آج جانا اور پہچانا جاتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے دروازے بند ہونے کے بعد کرکٹر بہت بڑے پیمانے پر بے روزگار ہو گئے ہیں. جنہوں نے کرکٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا, آج کوئی پنچر لگانے پہ مجبور ہے, کوئی ریڑھی چلا رہا ہے, کوئی کسی بائک کو کسی ٹیکسی کو چلانے پہ مجبور ہے, اور کوئی اسی طرح کے دیگر کام کر رہا ہے. کیا معاملہ ہے جناب, کیا نام ہے آپ کا, تعارف کیا ہے, کتنے فرسٹ کلاس میچز آپ نے کھیلے تھے؟ میرا نام واجد علی ہے, میں نے 78 فرسٹ کلاس میچ کھیلے, 2 بار پاکستان کا کیمپ کیا ہے, اور پچھلے 16 سال سے سوئی گیس سے وابستہ تھا. پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں, انہوں نے آ کے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کر دی, جس کی وجہ سے ہم روڈ پر آ گئے ہیں. تو آپ نے کرکٹ کو اپنا مستقبل سوچ کر ہی اس طرف آئے تھے, یا آپ کا خیال تھا کہ بس ایک گیم ہے, گیم کھیلوں گا اس کے بعد کوئی اور کام بھی کروں گا؟ اسٹارٹنگ میں تو بس ایک شوق کے لیے کھیل رہے تھے, جب اچھی پرفارمنس کی, جو اتنا نام بنا تو پھر پروفیشنل بن گئے, اس سے اپنی فیملی کا سب روزگار چل رہا تھا. پھر ایک دم سے ایسا سسٹم کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو اس طرح کا سسٹم پرائم منسٹر صاحب لے کر آئیں گے, اور جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ڈپارٹمنٹ نے جو کی اور پرائم منسٹر صاحب نے, اس کی وجہ سے آج ہم کتنے پریشان ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند ہونے سے صرف آپ جیسے چند لوگ ہی بے روزگار ہوئے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بے روزگاری آئی ہے اور پروفیشنل کرکٹر جو اس گیم کی طرف آنا چاہتے تھے, پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتے تھے, وہ سب سڑکوں پر آ گئے؟ سر اس سے بہت زیادہ ہوئے, ہم ہی نہیں, اس میں گراؤنڈ مین بھی ہیں, پورے پاکستان سے جو پلیئر ہیں وہ سب بے روزگار ہوئے ہیں. اس کا افیکٹ یہ پڑے گا کہ آج کے کون کرکٹ کھیلے گا. آج لڑکے ہم سے پوچھتے ہیں آپ لوگ نے کرکٹ کھیلی, کیا ملا آپ کو, آپ نے 16 سال اس چیز کو دیے ہیں, آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا. ہم نے اتنی پرفارمنس کی, میں نے پاکستان کے کیمپ کیے, پاکستان کا ہر پلیئر مجھے جانتا ہے, میں ٹیم میں تھا, میں اتنی پرفارمنس کا تھا, وہاں موقع نہیں ملا, نصیب کی بات ہے. لیکن آج ہمارا ریکارڈ آپ نکال کے دیکھ لیں, ہماری چیزیں دیکھ لیں. ہم نے سوئی گیس کے لیے اپنی پرمنٹ جاب چھوڑی, انہوں نے ہمارے ساتھ کس طرح کا بہیو کیا کہ آج ہم کس طرح کے حالات میں, یہ بتا, میں بائکیں چلا رہا تھا وہ بھی بند ہوئی ہے, آپ کو پتا ڈبل سواری پہ پابندی. تو اب ہم کیا کریں, اس کے مطلب ہم کوئی ایسا اقدامات کریں گے جس کا سارا جو ہے ان کے اوپر بلیم آئے گا. تو اچھا, آپ بالنگ کرتے تھے, بیٹنگ کرتے تھے, آپ کے ریکارڈ کیا ہیں؟ میں بیٹسمین تھا, میں نے اوپنر کیمپ کیا ہے, پاکستان کے ٹاپ 15 اوپنرز میں میرا نام تھا, جس میں پاکستان کے سلمان بٹ, حفیظ سب تھے. اس کے بعد مجھے مڈل آرڈر میں نے کیمپ کیا پاکستان کا, پھر مجھے آج تک مجھے اس میں کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا. چلے وہاں تو ایک لک کی بات ہوتی ہے, لیکن کوئی سپورٹ آج تک نہیں. پھر اس کے بعد اتنی پرفارمنس 16 سال کرکٹ کھیلنے کے بعد, اب آپ بتائیں جس نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی وہ کیا کرے گا. چلیں آگے بھی چلتے ہیں, کچھ اور بھی مزید لوگ ہیں, صرف ایک کرکٹر نہیں ہے. یہ ایک کرکٹر کے گھر کی کہانی نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ جی میں ایک بائک چلانے پہ مجبور ہوں, رینٹ پر بائک چلانے پہ مجبور ہوں, جو کرونا کی وجہ سے بند ہو گئی ہے, تو اب کھانے پینے کے بھی معاملہ خراب ہو رہا ہے. جناب آپ کتنے میچز کھیل چکے ہیں, کیا تعارف ہے آپ کا؟ سر میرا نام راجیش رمیش ہے, میرے 80 فرسٹ کلاس میچز ہیں, اور میں پاکستان کے لیے کیمپ بھی کر چکا ہوں 2. اور کیا کہتے ہیں, جب سے سوئی گیس پہ کھیل لیتے ہم تو ہمیں بڑا اچھا رکھ رہے تھے, جب نام تھا یہ تھا. اب اچانک ہی پرائم منسٹر صاحب نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کری ہے, تو اتنی پرابلمس آ رہی ہے جس کی ہم کہہ نہیں سکتے, کیونکہ آئی ایم میرڈ. اور ظاہر اوبیسلی سی بات ہے کہ بچے اسکول میں یہ 7 مہینے ہو گئے, جب تک جو اپنی سیونگ تھی چل رہی تھی, اب وہ جب انف ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے ہر کسی کا, وہ جب جا رہی ہے تو بڑی پرابلم آ رہی ہے. تو ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز پرائم منسٹر صاحب سے کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ دوبارہ بحال کی جائے, اور ہمیں ہماری جابوں آپ کی کیا توقع تھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے, کرکٹر ہی تھے, تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کرکٹ اب پاکستان تو اگلے سارے ورلڈ کپ پاکستان کے. اوبیسلی سر یہی بات تھی, کیا کہتے ہیں, ایک
प्रोफेशनल प्लेयर ही जब प्राइम मिनिस्टर बनाए तो हमारे तो दिल में ये खुशी आई थी कि नहीं यार ये बहुत अच्छा क्रिकेटर्स के लिए कोई एक नया फ्रेम लेकर आएंगे, बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इनका ये फ्रेम देख के तो बहुत बड़ा शौक लगा कि हमें कि इन्होंने तो क्रिकेटरों को ही बेरोजगार कर दिया। यंगस्टर जो है उसकी क्रिकेट की तरफ दिलचस्पी को कितना नुकसान पहुंचा है इससे? सर मुझे तो लगता है कि अब कोई यंगस्टर क्रिकेट की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि कोई उसे गोल ही नहीं दिखेगा, फ्रेम ही नहीं दिखेगा। पहले देखें आप, कराची की एक टीम बनती थी, सिंध बनती थी, अब इन्होंने क्या करा, अब सिंध की एक टीम कर दी है जिसमें हैदराबाद के 16, 15, 25 लड़के जो आते थे 10 रिजर्व या 15 खेलने में होते थे, अब वो 15 तो एग्जैक्टली के बफारी की हो गए, वो तो खेल ही नहीं सकते क्योंकि सिंध में कराची के माशाल्लाह इतने टेस्ट प्लेयर हैं। इससे ये तो नहीं होगा कि अच्छे क्रिकेटर भी तो सामने आएंगे ना, मतलब रिफाइन होकर आएंगे, बोझ नहीं कैसे पड़ेगा। आएंगे मुझे आप बताएं ना, अगर कराची के अंदर 11 फर्स्ट क्लास या पाकिस्तान प्लेयर खेल रहे हैं, अगर वही जब सिंध की एक टीम बनेगी अगर वो लड़के खेल रहे हैं तो आप जूनियर्स को बताएं कहाँ जगह मिलेगी। चले आप इमरान खान साहब के विजन से मुतासिर हो गए, चले आगे चलते हैं, आगे भी कुछ क्रिकेटर मौजूद हैं। जी आप क्या खेलते रहे क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है? खेलता रहा हूँ सुई गेस से, तकरीबन 16 साल मैंने सुई गेस से क्रिकेट खेली है। अब क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो बहुत ख़राब है, डिपार्टमेंट ने फारिग कर दिया है नौकरी से और उसके बाद जो है ना घर के हालात बहुत ख़राब हैं। तो कैसे गुजारा होता है? अब एक सिस्टर हैं जो थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं, फिर उसके अपना बाद रोजगार अब नहीं है। हाँ अब रोज़गार कोई भी नहीं है, बस एक सिस्टर हैं थोड़ी सी सपोर्ट करती है, उनको बच्चों को थोड़ा सा देख दाख के काम चलाते हैं। तो आपके जब आप क्रिकेट की तरफ आए थे आपके जहन में क्या गोल्स थे, क्या करना है और फिर क्या हो गया? क्रिकेट की तरफ जब आए थे तो क्रिकेट खेली थी, स्टार्ट की थी, कराची खेली, कराची से फिर पाकिस्तान कैंप किया, कैंप से फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट में आए, डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेलते रहे तो इस तरीके से खेलते हुए पाकिस्तान लेवल तक की खेलने की सेटिंग थी। चलें आगे की तरफ चलते हैं। जी आप क्या रिकॉर्ड है आपका, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे हैं या नीचे ही? फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा हूँ मैं। दूसरा ये मैंने 54 आउट किए थे डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में मैंने टॉप किया था, पाकिस्तान अंडर 19 कैंप किया और बहुत सारी क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेली। बदकिस्मती से पाकिस्तान नहीं खेल पाए। बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत बेरोज़गारी हो गई है। मेरे वालिद और वालदा का ऑपरेशन हुआ है, मैं उनको दवाइयाँ ला के नहीं दे सकता, ये हाल हो चुका है आज मेरा। तो कब से आप इस परेशानी का शिकार हैं? आज कब 7 महीने हो गए हैं हम इसी परेशानी के हाल में। और जब इमरान खान साहब आए थे, एक क्रिकेटर थे, आपकी क्या तवक्का थी? उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, मगर ये है कि उम्मीदें जो है ना बहुत ज़्यादा टूटी हैं और हम जो है चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि इसकी तरफ थोड़ी सी नज़र डालें, तो इससे बुरा हो सकता है। तो हमारी ये कोशिश कि सबके लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। चलें नाज़रीन, प्रोग्राम को आज ख़त्म करते हैं, लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या ये है कि ख़ुद इमरान खान साहब जिस शोबे से वाबस्ता रहे, जिसके हवाले से उनको पहचाना जाता है, जिसके हवाले से उनका बड़ा नाम है, वही शोबे के क्रिकेटर्स जो हैं वो आज हमारे पास मौजूद थे, जिनका कहना था कि हमारे घरों पर अब खाने को नहीं है, रिश्तेदारों की सपोर्ट से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इमरान खान साहब को इस तरफ भी सोचना चाहिए कि अगर कोई मुतबादिल सेटअप लाना ही मकसूद था तो पुराने सेटअप के लोगों को किसी न किसी तरीके से कंपनसेट किया जाता कि जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना क्रिकेट को बनाया हुआ था। आज के प्रोग्राम में हमने वही एस्पेक्ट काबू करने की, उन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करने की कोशिश की जो इमरान खान साहब की ज़ात से मुतालिक थे, यानी कि फ़िटनेस और क्रिकेट, और दोनों के हालात हमने आपके सामने रखने की कोशिश की, उसकी आवाज़ इमरान खान साहब तक पहुँचाने की कोशिश की। नाज़रीन यहाँ से आज प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, अगले प्रोग्राम तक ले आ दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।